Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Balance Byte. Intermediate Accounting, Chapter number 1, Financial Statement, the Balance Sheet. Question number 2. Prepare a properly classified balance sheet for the Introduce Sale Corporation from the information that follows as of March 31st, 1964. Account receivable, current asset, account payable, current liability, accrued interest on note receivable, current liability, advances from customer on contract in progress, current liability, allowances for depreciation of building में से less होगा, allowances for depreciation of machinery and equipment, less from machinery and equipment, allowances for doubtful note and account, doubtful note receivable और account receivable में से less होगा, building, plant and machinery, plant and equipment, cash in hand, current asset, cash on bank, current asset, cash value of life insurance policy, investment, common stock, paid in capital, dividend receivable, current asset, estimated incorporation, tax payable, current liability, finished goods inventory, current asset, goods in process inventory, current asset, interest received in advance, current liability, deferred revenue, investment in stock of subsidiary company, investment in undeveloped properties, investment, land, plant and equipment, machinery and equipment, plant and equipment, miscellaneous accrued expenses, current liability, prepaid expenses, current assets, supplies inventory, inventories, note payable, current liability, note payable, long-term liability, note receivable, current liability, patent, intangible, preferred stock, paid in capital, raw material inventory, retained earning का डेबिट बैलेंस है लेस होगा, salaries and wages payable, current liability 4%, serial bonds payable, long-term liability 4%, serial bond payable, long-term liability, temporary investment in marketable securities, current asset, tool, plant and equipment, unamortized bond issue cost, other assets, withholding tax payable, current liability. अब हमने इसकी बैलेंस शीट बनानी है. पहले हम एसेट वाली साइड कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम जो है लाइबिलिटी एंड ऑनर इक्विटी वाली सारी साइड को कंप्लीट करेंगे. जितनी टोटल इन्फॉर्मेशन थी उनको हमने डिस्कस कर लिया कि कौन सी चीज़ आपकी करंट एसेट में है, कौन सी आपके जो है वो इन्वेस्टमेंट में है, कौन सी प्लांट एंड इक्विपमेंट में है, कौन सी इंटेंजिबल में और कौन सी अदर एसेट में है. ऑन द अदर हैंड कौन सी करंट लाइबिलिटी है, कौन से लॉन्ग टर्म डेट हैं, डेफर्ड रेवेन्यू क्या है और पेड इन कैपिटल में क्या आएगा. एंड्रयू सेल कॉर्पोरेशन बैलेंस शीट एज ऑन March 31st. एसेट करंट एसेट्स में अकाउंट रिसीवेबल हैं हमारे पास 46,000 के. देन नोट रिसीवेबल हैं हमारे पास 10,500. इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 56,500. दिस इज़ सब टोटल. और उसके बाद जो अलाउंसेस थे वो नोट और अकाउंट दोनों के थे, इसलिए हमने दोनों को ऐड करके उसमें से कंबाइन लेस किया 1600. अगर अलाउंसेस सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल के होते तो उसमें से माइनस करते, अगर सिर्फ नोट रिसीवेबल के होते तो उसमें से माइनस करते, लेकिन ये दोनों के थे इसलिए दोनों की अमाउंट को ऐड करके उसमें से 1600 हमने लेस कर दिया. बाकी रिमेनिंग अमाउंट बची 54,900. उसके बाद है जी अक्रूड इंटरेस्ट ऑन नोट रिसीवेबल डेट इज़ 300. फिर है जी कैश इन बैंक वो है 18,500. फिर है जी कैश ऑन हैंड 500. उसके बाद है जी डिविडेंड रिसीवेबल 150. टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ 15,600. फिर इन्वेंट्रीज 3 थी इसलिए हमने सेपरेट उसकी हेडिंग बना ली. फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है 19,500 की. उसके बाद गुड्स इन प्रोसेस की है 30,000 की और रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है 26,000 की. फिर हमारे पास दो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, मिसलिनियस प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं 1600 के और हमारे पास मिसलिनियस सप्लाईज इन्वेंट्री हैं 2600 की. यहाँ पे हमारे पास जितने करंट एसेट हैं सबका टोटल करेंगे तो जो करंट एसेट का आंसर है हमारे पास
डेट इज़ 169650। उसके बाद इन्वेस्टमेंट में हमारे पास 3 चीज़ें थी, कैश वैल्यू ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक ऑफ सब्सिडरी और इन्वेस्टमेंट इन अंडर डेवलप प्रॉपर्टीज़। तीनों इन्वेस्टमेंट की अमाउंट लिखेंगे। 4000 थी आपके पास कैश वैल्यू, सब्सिडरी थी 85,000 की और अंडर डेवलप प्रॉपर्टीज़ थी 130,000 की। तो इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करके जो इन्वेस्टमेंट का टोटल आया डेट इज़ 219,000। देन था जी हमारे पास प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड की वैल्यू है हमारे पास 50,000, मशीनरी एंड इक्विपमेंट हमारे पास हैं 65,000 के, उसमें से उसकी अलाउंसेस लेस करेंगे 21,000, तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बच जाएगी 44। उसके बाद है जी बिल्डिंग है हमारे पास 100,000 की और उसमें से हम 50,000 उसके अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50,000। उसके बाद है जी हमारे पास टूल्स हैं 6,000 के, इन सब का टोटल करेंगे तो हमारे पास प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो कॉस्ट है डेट इज़ 150,000। देन है जी हमारे पास इंटेंजिबल, और इंटेंजिबल में पेटेंट है हमारे पास 15,000 के। देन अदर एसेट्स हैं अनअमोर्टाइज बॉन्ड इशू कॉस्ट, वो है हमारे पास 5200 की। तो इन सब का जब आप टोटल करेंगे तो जो टोटल एसेट्स हमारे पास आ जाएंगे वो आएंगे 558,850। ये था आपके टोटल एसेट्स। अब हम लाइबिलिटी साइड का टोटल करेंगे और स्टॉक होल्डर इक्विटी। ये सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज़ हैं, अकाउंट पेएबल हैं, अकाउंट पेएबल हैं हमारे पास 24,150। देन है जी एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, वो है 9,000 के। उसके बाद है एस्टिमेटेड इनकम टैक्स पेएबल 6,000, मिसलेनियस अक्रूड एक्सपेंसेस 2,100, नोट पेएबल जो करंट है, ये बेसिकली हमारे पास नोट पेएबल वो हैं जो करंट हैं, तो इसलिए ये करंट लाइबिलिटी में नोट पेएबल आ जाएंगे। ये हैं जी मेरे पास 15,000 के। उसके बाद है जी सैलरीज एंड वेजेस पेएबल 1,500 की। नॉर्मली जिनके साथ परसेंटेज जो वो लॉन्ग टर्म डेट होते हैं, लेकिन ये बॉन्ड्स पेएबल हैं मार्च में ड्यू हैं 1965, तो ये 1 साल के अंदर अंदर ड्यू हो गए, इसलिए इनको हम यहाँ पे करंट लाइबिलिटी में लिखेंगे। तो ये थे हमारे पास 10,000 के और उसके बाद विद होल्डिंग इनकम टैक्स पे 1,400। तो यहाँ पे हम टोटल करेंगे अपनी करंट लाइबिलिटीज़ का, तो वो बना 69,150। देन है जी उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट जिसमें नॉट पेएबल हैं जो कि ड्यू होने हैं 1969 में, वो हैं 20,000 के। इसी तरह से 4% सीरियल बॉन्ड है जो कि पेएबल है 1966 में, जो कि कमिंग ईयर्स में है, तो ये 90,000 के हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होगी 110,000 की। देन उसके बाद है जी इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस, ये हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू है 200 का। तो यहाँ तक हम टोटल करेंगे तो जो हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी डेट इज़ 179,350। उसके बाद है जी स्टॉक होल्डर इक्विटी। स्टॉक होल्डर इक्विटी में सबसे पहले है जी पेड इन कैपिटल। पेड इन कैपिटल में सबसे पहले मेरे पास प्रेफर्ड स्टॉक हैं, ये हैं 100,000 के। फिर मेरे पास कॉमन स्टॉक हैं, वो हैं 300,000 के। फिर उसके बाद प्रीमियम था, प्रीमियम मेरे पास है 40,000 का। और एक रिटेन्ड अर्निंग का डेबिट बैलेंस था। क्रेडिट बैलेंस होता तो ऐड करते हैं, डेबिट बैलेंस है तो लेस करेंगे। तो ये मेरे पास जो रिटेन्ड अर्निंग का 60,500 है, ये लेस कर देंगे। तो उसके बाद टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी का जो आंसर आया डेट इज़ 379,500। अब लाइबिलिटीज़ को और इसको टोटल करेंगे तो मेरे पास जो टोटल लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी आ गई डेट इज़ 558,850। तो हमारी बैलेंस शीट इक्वल आ गई, एसेट साइड भी, लाइबिलिटी और स्टॉक होल्डर इक्विटी भी। अच्छा जी, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।